Hello everyone. Hope everyone doing well. Welcome to my YouTube channel Maths by पीयूष तिवारी सर। मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं स्टेट्स के ऊपर लास्ट मिनट रिवीजन चैप्टर टाइम सीरीज पे वीडियो रिलीज करने जा रहा हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम इस लेक्चर में 3 to 4 मार्क्स के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करेंगे। टाइम सीरीज बहुत इजी चैप्टर है, बट इसमें कैलकुलेशन बहुत है, इसमें मिस्टेक होने की चांसेस ज्यादा होती है। माय डियर स्टूडेंट्स, सो आज के लेक्चर में हम आपको टाइम सीरीज के थियरी, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस, concepts and least square method, 3 yearly moving average, 4 yearly moving average, 5 yearly moving average and graphical methods, ये सारे पार्ट्स आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे। सो नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, बी रेडी फॉर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फ्रॉम चैप्टर टाइम सीरीज। बी रेडी एवरीवन। Theory concept. What is time series? Time series is statistical data that are arranged and presented in a chronological order over a period of time. This is very important definition. Just remember कि time series क्या होता है? Time series is a statistical data जो कि हम arrange करते हैं chronological order में over a period of time. The systematic components of time series which follow regular pattern of variations are called signal. The unsystematic sequence which follow irregular pattern of variation is called noise. So this is a definition about time series, definition regarding आपका signal and definition regarding noise. So remember these points. What are the components in time series? There are various forces that affect the values of phenomena in a time series. This may be broadly divided in the following four categories. How many categories? Four components होते हैं, commonly known as components of time series. Now, what are the four important components? ध्यान में रखिए, objectives में आते हैं. What are the four important components? First, long-term movement, which is called a secular trend, denoted by T. Seasonal variations, denoted by S. Cyclic variations, denoted by C. Random or irregular variation, denoted by I. Now, what is secular trend or a simple trend? So, my dear students, since ये रिवीजन लेक्चर है, तो मैं यहाँ पे आपको थियरी नोट्स दे रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसे पढ़ लीजिए। एटलीस्ट आप इतने पॉइंट्स याद रखेंगे, देन इट इज मोर देन इनफ। नाउ, सीजनल वेरिएशन, टेक a screenshot or note down it and go through it. इसे आप पढ़ लीजिए। जितने पॉइंट्स हमने यहाँ पे आप लोगों के लिए दिए हैं, इट इज मोर देन इनफ टू रिमेम्बर। आप इतने पॉइंट्स याद रखेंगे तो आपको सीजनल वेरिएशन समझ में आ जाएगा। सीजनल वेरिएशन इज बेसिकली डिपेंडेंट ऑन मंथली, वीकली, डेली और क्वार्टरली और आवरली बेसिस। इज इट क्लियर? सीजनल वेरिएशन जो हम कैलकुलेट कर रहे हो, क्वार्टरली भी करते हैं, मंथली भी करते हैं, आवरली भी करते हैं, वीकली भी करते हैं, डेली बेसिस पे भी करते हैं। द मेथड्स टू स्टडी सीजनल वेरिएशंस आर simple average method, ratio to trend method, ratio to moving average method, and link relative methods. Now, cyclic variation, very important. Cyclic variation. Cyclic variations are vary for a period of 7 to 9 years, maybe less or more. Is this clear? Go through all these concepts of cyclic variations. Random or irregular variations. These are irregular variations which occur on account of random external events. So, like irregular variation मतलब जो मतलब जिसका प्रिडिक्शन हम नहीं करते और अचानक हो जाता है। लाइक एग्जांपल, फ्लड्स, वॉर, फेमिनिज, अर्थक्वेक, स्ट्राइक्स, okay, lockouts, epidemics, all these are the irregular variations. तो just remember the examples, so आपको irregular variation और random variation का मतलब समझ में आएगा। Now, measurement of secular trend. Secular trend को measure करने के लिए there are four important uh, methods: graphical method, method of semi-average, method of moving average, and method of least square. Here, method of least square method is very important method. Now, what is the method of least square, my dear students? The method of least square are is as studied in regression analysis. हमने regression analysis में भी method of least square पढ़ा है. Can be used to find the trend line of best fit
to a time series data. हाउ टू कैलकुलेट मेथड ऑफ लिस्ट स्क्वायर मेथड को कैसे कैलकुलेट किया जाता है? माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए स्टेप्स दिए हैं, आप ये स्टेप्स को नोट डाउन कर लें, जिससे आपको मेथड ऑफ लिस्ट स्क्वायर कैलकुलेट करने आ जाएगा. स्टेप 1, स्टेप 2, दिस इज सम नोट एंड दिस इज द कंटिन्यू पार्ट ऑफ स्टेप 2. So my dear students, this is about theory of time series. Now let us start solving the problems. First question. The publisher of a magazine wants to determine the rate of increase in the number of subscribers. The following table shows the subscription information of 8 consecutive years. 1976 से लेके 1983, there are 8 years. Fit the trend line by graphical method. हमें ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है. फिट द ट्रेंड लाइन बाय ग्राफिकल मेथड. वेरी इजी. ग्राफिकल मेथड बहुत इजी होता है माय डियर स्टूडेंट्स. आपको क्या करना है? आपको एक्स एक्सिस पे ईयर लेना होता है. जो ईयर है वो एक्स एक्सिस पे जाता है, याद रखिएगा. ईयर ऑन एक्स एक्सिस और नंबर ऑफ सब्सक्राइबर आपके वाई एक्सिस पे जाएंगे ना. आप देख सकते हैं इसमें सबसे मिनिमम नंबर क्या है? सबसे मिनिमम नंबर है 12 और सबसे मैक्सिमम नंबर क्या है? 20. तो हमें 12 से 20 तक जाना है. सो व्हाट वी विल डू, मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं हम ग्राफ में कैसे स्टार्ट करेंगे. आप यहाँ पे जो ओरिजिन मत करिए, आप यहाँ पे लिख दीजिए मिनिमम नंबर 8 और ईयर 76 है तो एक पहले से चालू करो. तो 1975 और 8. So this point represent 8 on y-axis and this point represent 1975 on x-axis. तो 1976, 1977 इस तरह से आपको 1983 तक जाना है y-axis पे. 8 to 12, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. क्योंकि 23 मैक्सिमम है तो आप 24 तक जाइए. ना 1976 पे 12, तो आप देख सकते हैं 1976 पे 12, ये आपका हो गया 1976 पे 12. 1977 पे 11, 1978 पे 19, ठीक है. 1979 पे 17, 1980 पे 19. इस तरह से माय डियर स्टूडेंट्स आपको क्या करना है? इस तरह से आपको पॉइंट्स को प्लॉट कर देना है. आफ्टर प्लॉटिंग द पॉइंट्स माय डियर स्टूडेंट्स, आपको एक लाइन लेनी होती है. आपको एक ऐसी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है जो मैक्सिमम पॉइंट से पास हो और अदरवाइज मैक्सिमम पॉइंट्स उस लाइन के क्लोज में हो. तो ये एक लाइन आप देख रहे हैं, ये जो लाइन हमने ड्रॉ की है रेड कलर की लाइन, ये जो लाइन है इस लाइन के पास में ही ज्यादातर पॉइंट्स है. कुछ ही पॉइंट्स हैं जो ये लाइन से डिस्टेंस पे हैं. तो एक या दो पॉइंट को छोड़ दिया जाए, इसको और इसको छोड़ दिया जाए, तो आप देख सकते हैं मैक्सिमम पॉइंट्स, ये जो मैक्सिमम पॉइंट्स हैं ये लाइन के नियर बाय है और ऑन द लाइन है. तो आपको इस तरह से लाइंस ड्रॉ करनी होती है. आप कैसी भी लाइन नहीं खींच देंगे. आप सपोज ऐसे लाइन खींच दिए, ये लाइन ड्रॉ कर दिया एग्जाम में, इट इज रॉन्ग क्योंकि मैक्सिमम पॉइंट्स दूर हो गए. अगर आपने एग्जाम में सपोज इस तरह से लाइन खींची तो भी रॉन्ग है. क्यों रॉन्ग है? क्योंकि आप देख सकते हैं ज्यादातर पॉइंट्स लाइन से क्या हो गया? फार हो गए. तो आपको ये लाइन ड्रॉ करने के टाइम पे, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के टाइम पे आपको इस बात का पूरा पूरा ध्यान में रखना है कि आपके मैक्सिमम पॉइंट्स क्या हो? ज्यादातर पॉइंट्स लाइन के क्लोज में आए. मैक्सिमम पॉइंट्स आर क्लोज टू द लाइन. आप देख सकते हैं हमारी मैक्सिमम पॉइंट्स लाइन के क्लोज में एक्सेप्ट 2 पॉइंट्स. तो आपको इस तरह से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है. ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ट्रेंड लाइन आप डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे. ये देख सकते हैं आप डॉटेड लाइन हमने ड्रॉ की है. सो रिप्रेजेंट दिस ट्रेंड लाइन बाय यूजिंग अ डॉटेड लाइन. आपको एग्जाम में स्केल लिखना है. राइट स्केल ऑन एक्स एक्सिस, ऑन एक्स एक्सिस 1 यूनिट इक्वल टू 1 ईयर. यहाँ पे 1976, 1977, 1 ईयर का गैप है. तो 1 यूनिट इज 1 ईयर एंड ऑन वाई एक्सिस 1 यूनिट इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर. इज दिस क्लियर? आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने 10, 12 लिया है तो 2 सेंटीमीटर लिया है. या 1 यूनिट इक्वल टू 2 सब्सक्राइबर्स, ऐसे भी आप लिख सकते हैं. तो सो माय डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से आप ग्राफ प्लॉट करोगे. लेट अस प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 2. फाइंड 3 ईयरली मूविंग एवरेज. 1977, 1978 ये सब आपको डेटा दिया गया. आपका सॉल्यूशन, आपका पहला, देयर आर 4 कॉलम. पहला कॉलम ईयर, दूसरा कॉलम नंबर ऑफ बॉक्सेस,
जो कि आपको गिवन होगा। उसके बाद आपका थर्ड कॉलम आएगा 3 ईयरली मूविंग टोटल, फोर्थ कॉलम आएगा 3 ईयरली मूविंग एवरेज ट्रेंड वैल्यूज, इसी को हम ट्रेंड वैल्यू बोलते हैं। नाउ 3 ईयरली मूविंग टोटल कैसे कैलकुलेट करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स? तो आपको फर्स्ट 3 ईयर्स के नंबर ऑफ बॉक्सेस काउंट करने हैं, फर्स्ट 3 ईयर्स, और ये तीनों साल का जो सेंटर होगा दैट इज दिस ईयर, वहां पे आपको सेंटर में इसका टोटल लिखना है। आप पढ़ो ना, 3 ईयरली मूविंग टोटल, 3 ईयरली मूविंग टोटल, 3 साल का टोटल। तो ये तीनों देखो, ये 3 साल हैं, इनका सेंटर कौन है? 1978। तो आपकी एंट्री यहाँ पे आएगी। तो आपकी एंट्री यहाँ से स्टार्ट होगी। तो फर्स्ट बॉक्स में क्या आएगा? डैश। फर्स्ट बॉक्स में कोई भी एंट्री नहीं आएगी, तो फर्स्ट बॉक्स में आप क्या कर देंगे? डैश। चलो, 1 + 0 + 3, ये आप यहाँ पे एंट्री करेंगे, 1 + 0 + 3। तो 3 + 1 कितना हो गया हमारे डियर स्टूडेंट्स? 4। फिर आपको क्या करना है? ऊपर से 1 ईयर स्किप करना है और नेक्स्ट 3 ईयर्स लेना है। तो ये तीनों ईयर का सेंटर कौन होगा? ये तीनों ईयर का सेंटर यहीं पे आएगा। यस। चलो, तो क्या आ जाएगा? 0 + 3 + 8, 0 + 0 + 3 + 8 इक्वल टू 11। चलो, नेक्स्ट आपको क्या करना है माय डियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट आपको ऊपर से एक स्किप करना है और नेक्स्ट 3 लेना है। तो क्या आ जाएगा? टोटल 3 + 8 + 10, दैट इज 21। फिर आपको ऊपर से एक स्किप कर देना है और नेक्स्ट एंट्री लेनी है। इस तरह से आपको एक एक एंट्री लेती जानी है। 8 10 4, 8 + 10 + 4, दैट इज 22। नेक्स्ट आपको क्या करना है माय डियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट 3 एंट्री लेनी है। 10 4 5, 10 + 4 + 5, दैट इज 19। फिर आपको एक एंट्री स्किप करनी है, नेक्स्ट 3 एंट्रीज लेनी है। 4 + 5 + 8, दैट इज 17। फिर आपको एक एंट्री स्किप करनी है और नेक्स्ट 3। तो आप देख सकते हैं आगे 3 एंट्रीज है ही नहीं, केवल 2 ही एंट्री बचती है। तो जब 3 एंट्रीज नहीं मिलेगी, वहीं पे हमारा प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स। और लास्ट लाइन में आपको क्या करना है? लास्ट बॉक्स में आपको आ जाएगा डैश। ना यहाँ पे भी डैश होगा, यहाँ पे भी डैश हो जाएगा ना। 3 ईयरली मूविंग एवरेजेस, आपको क्या करना है? आपका जो ये मूविंग टोटल आया उसको डिवाइड बाय 3 करना है। तो 4 ÷ 3, तो 4 ÷ 3 आप करेंगे, यू विल गेट 1.33। नेक्स्ट, सिमिलरली 11 ÷ 3, 11 ÷ 3, दैट इज 3.666666 आएगा हमारे डियर स्टूडेंट्स। तो आपको 2 डिजिट तक ही जाना है, तो आप 3.67 कर दीजिए, राउंड ऑफ। नेक्स्ट, 21 ÷ 3, 21 ÷ 3। अब मैं ये नहीं लिखता हूँ, हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं एग्जाम में। तो 21 ÷ 3, दैट इज 3 7 = 21। 22 ÷ 3, तो 22 ÷ 3, दैट इज 7.33। नाउ माय डियर स्टूडेंट, 7.3333 आएगा, तो आप 7.34 नहीं लिख सकते। जब हमारा सेकेंड डिजिट 5 या 5 से ज्यादा आएगा तो ही राउंड अप करें। 7.3333 आए तो आपको 7.33 ही लिखना है। नाउ 19 डिवाइड बाय 3, 19 ÷ 3 is 6.33। 17 ÷ 3, that is 5.66666। तो हम लिखेंगे 5.67। माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो लास्ट कॉलम है, आपको इसे डेसिमल में कन्वर्ट करना कंपलसरी है। 3 ईयरली मूविंग एवरेज, दैट इज कॉल्ड एज ट्रेंड वैल्यू, इस कॉलम को आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना नेसेसरी है, अदरवाइज आपके मार्क्स कट जाएंगे। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, इफ इट इज 3 मार्क्स प्रॉब्लम इन द बोर्ड एग्जाम, आपको 1 मार्क इस कॉलम पे मिलेगा एंड यू विल गेट 2 मार्क इन द लास्ट कॉलम। इज दैट क्लियर? होप दैट आपको ये 3 ईयरली मूविंग एवरेज समझा होगा। लेट अस प्रोसीड टू नेक्स्ट सम। क्वेश्चन नंबर 3, द फॉलोइंग डेटा गिव्स द प्रोडक्शन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इन 1000 टन्स फॉर द ईयर 1962 से 1972 तक दिया है। फाइंड 5 ईयरली मूविंग एवरेज फॉर द फॉलोइंग डेटा। ओके, हमें 5 ईयरली मूविंग एवरेज कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट कॉलम में ईयर आएगा, सेकंड कॉलम में प्रोडक्शन। चलो, 5 ईयरली मूविंग एवरेज मतलब आपको फर्स्ट 5 ईयर लेना है, 1 2 3 4 5। और ये 5 ईयर्स का सेंटर क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स? आप देख सकते हैं ये फर्स्ट 5 ईयर का जो सेंटर है वो 1 है।
देखो ना, ऊपर से दो डेटा कट करो, नीचे से दो डेटा कट करो, सेंटर कौन आया? वन। तो आपकी पहली एंट्री यहाँ पे आएगी। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो पहले दो बॉक्स में कोई भी एंट्री नहीं आएगी। तो फर्स्ट एंट्री आपकी यहाँ से स्टार्ट होगी। होप दैट आपको समझा होगा। सो लेट्स स्टार्ट। चलो, फर्स्ट फाइव एंट्री, 1 2 3 4 5, 0 0 1 1 4। तो आपका आएगा 0 + 0 + 1 + 1 + 4। टोटल करिए, 4 5 6। क्या आ जाएगी? फर्स्ट एंट्री आ गई 6। अब आपको क्या करना है? वन एंट्री स्किप। चलो नेक्स्ट, एक एंट्री नीचे बढ़ जाएगी। 0 + 1 + 1 4 + 2। 0 + 1 + 1 4 + 2। कितना आ जाएगा? 4 + 2 6 7 8। नेक्स्ट, वंस अगेन आपकी एक एंट्री यहाँ से रिमूव हो जाएगी। नेक्स्ट वन और एंट्री आ जाएगी। माय डियर स्टूडेंट्स, क्या आ जाएगा? 1 1 4 2 4। ओके, तो इट इज 4 + 4 8 9 10 11 12। नेक्स्ट, वापस ऊपर से एक एंट्री गई, एक एंट्री नीचे इंक्रीज होगी। 5 ईयरली, आपको 5 ईयर का टोटल लेना है और सेंटर में लिखना है। 1 4 2 4 9। 1 + 4 + 2 + 4 + 9। कितना आ जाएगा? दैट इज 20। टोटल करके आप वेरीफाई करिए। नेक्स्ट, वन मोर एंट्री, 4 2 4 9 7। 4 2 4 9 + 7, that is 26। 26। नेक्स्ट एंट्री, ऊपर से एक एंट्री गई, नीचे से आपकी एक एंट्री आ जाएगी। 2 4 9 7 10। कितना आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट? दैट इज 32। नेक्स्ट, आपके ऊपर से एक एंट्री जाएगी, नेक्स्ट वन एंट्री आ जाएगी। 4 9 7 10 8। 7 10 + 8, दैट इज 38। अब आप देख सकते हैं, ऊपर से अगर मैं एक एंट्री हटाऊं तो हमें टोटल कितनी एंट्री दिख रही है? हमें टोटल चार ही एंट्री दिख रही है, जबकि ये 5 ईयरली है तो हमें फाइव एंट्रीज चाहिए। यहाँ पे 5 एंट्रीज पॉसिबल नहीं है। सो आवर प्रोसेस शुड बी स्टॉप हियर। तो लास्ट के दो रो में क्या आ जाएगा? डैश डैश। सो 5 ईयरली में केवल 5 ईयर्स का टोटल करना है, 3 ईयरली में 3 ईयर्स के टोटल। लेट अस प्रोसीड। अब आगे चलते हैं। नाउ व्हाट वी विल डू माय डियर स्टूडेंट्स, अब हमें क्या करना है? अब हमें 5 ईयरली मूविंग एवरेज, that is called as trend value। ये फर्स्ट टू डैश, लास्ट का टू डैश, आपकी जो ये वैल्यू आई, उस वैल्यू को 5 से डिवाइड करना है। दैट मीन्स 6 / 5। 6 / 5। 6 / 5, that is 1.2। Similarly, 8 / 5। What is 8 / 5? That is 1.6। 12 / 5, अब मैं डायरेक्ट एंट्री लिखता हूँ माय डियर स्टूडेंट्स। 12 / 5, that is 2.4। 20 / 5, that is 4। चाहिए तो 4.0 लिखो, केवल 4 लिखेंगे तो भी चलेगा। 26 / 5, 5.2। 32 / 5, 6.4। 38 / 5, that is 7.6। So this is the answer for 5 ईयरली मूविंग एवरेज। लास्ट कॉलम की एंट्रीज माय डियर स्टूडेंट्स डेसिमल में निकालना कंपलसरी है। If it is 3 marks problem, you will get 1 mark in this column and 2 marks for the last column. That is 3 marks sum. Let us proceed to question number 4. Obtain the trend value for the data using 4 ईयरली centered moving average। 4 ईयरली centered moving average। Now, my dear students, 3 ईयर आप देखें तो 3 ईयर में आपको सेंटर मिला, राइट? ये देखो, ये 3 ईयर है तो सेंटर मिला। 5 ईयर था तो आपको सेंटर मिला, दिस इज द सेंटर। बट 4 ईयर में सेंटर नहीं होता। अगर टू यहाँ देखे, टू यहाँ देखे तो सेंटर नहीं होता। तो इसके लिए 4 ईयरली मूविंग एवरेज में आपको टोटल
कितने कॉलम्स बनाने हैं? 1 2 3 4। माय डियर स्टूडेंट्स, ये हेडिंग याद रखना कंपलसरी है। अगर आप पूरा टेबल बनाए और ये हेडिंग में मिस्टेक किया तो आपको 0 मार्क्स मिलेगा। सो रिमेंबर दिस हेडिंग्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेट अस सी। 4 ईयरली मूविंग टोटल, आपको 4 ईयर लेना है और उसके सेंटर में लिखना है। तो हाउ टू राइट? माय डियर स्टूडेंट्स, 1 2 3 4, ये आपको 4 ईयर्स लेना है और उसके सेंटर्स में आपको एंट्री करनी है। तो देखो कैसे करेंगे, आप ध्यान दीजिएगा। तो पहली एंट्री क्या है? 0 2 3 3। इज दिस क्लियर? तो इनकी एंट्री देखो, 1 1 2 3 4। तो ये वाली जो लाइन है, ये लाइन आपका सेंटर हुआ। तो आपको सेंटर पे एंट्री करनी है, लाइक दिस। इज दिस क्लियर? आपको समझा होगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, लेट अस सी। 1 2 3 4। तो ये 4 का सेंटर आपको 1 2 3 4, तो आपको लेना है 0 प्लस, ये लाइन पे लिखो, 2 प्लस 3 प्लस 3, कितना हो गया? दैट इज 8। इज दिस क्लियर? इस तरह से आपको ये लाइन के ऊपर लिखना है, दैट इज सेंटर में लिखना है। अब आपको ऊपर वाली एक एंट्री छोड़नी है, नेक्स्ट एंट्री लेनी है। अब मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, 2 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 2, ये 4 एंट्रीज। तो 3 प्लस 3 6 7 8 9 10 हो जाएगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एंट्री आएगी 10। फिर आपको ऊपर से एक रिमूव करना है और एक एंट्री ले लेनी है यहाँ से। कितना आएगा? 3 प्लस 3 6 7 8 8 प्लस 4 12। आपकी नेक्स्ट एंट्री आएगी 12। फिर आपको यहाँ से एक एंट्री हटा देनी है, नेक्स्ट वन एंट्री। 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 5 10, 10 प्लस 4 14। सो नेक्स्ट एंट्री इज 14। वन एंट्री मूव, रिमूव करना है, नेक्स्ट लेना है। 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 6 12, 12 प्लस 5 17। होप दैट आपको समझ में आ रहा होगा। फिर यहाँ से एक एंट्री हटानी है, नेक्स्ट 4 एंट्रीज। 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 6 15, 15 प्लस 5 दैट इज 22। तो नेक्स्ट एंट्री आपकी आएगी 22। चलो लास्ट वन मोर एंट्रीज, दिस इज दिस। 5 6 7 10, 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 10 दैट इज 28। 28। ऊपर आपकी कोई भी एंट्रीज नहीं आएगी, ऊपर एंट्रीज आपकी आ जाएंगी डैश। तो आपको इस तरह से सेंटर में लिखना है। नाउ 4 ईयरली मूविंग एवरेज, 4 ईयरली मूविंग एवरेज में आपको क्या करना है माय डियर स्टूडेंट्स? दिस नंबर जो भी आया उसको डिवाइड बाय 4 कर देना है। क्या कर देना है? आपको डिवाइड बाय 4 करना है। सो इस कॉलम में क्या आएगा? ये कॉलम में आपका आएगा 8 डिवाइड बाय 4, दैट इज 2। सिमिलरली 10 डिवाइड बाय 4, 10 डिवाइड बाय 4 इज 2.5। तो ये कहाँ लिखना है? आपको ये 10 के सामने लिखना है माय डियर स्टूडेंट्स। ये 10 दिख रहा है ना, ये 10 के सामने ही आपको लिखना है। चलिए कंटिन्यू। 12 डिवाइड बाय 4, 12 डिवाइड बाय 4 दैट इज 3 4 जा 12। 14 डिवाइड बाय 4, 3.5। 17 डिवाइड बाय 4, 4.25। ओके। 22 डिवाइड बाय 4 दैट इज 5.5। 28 डिवाइड बाय 4, 4 7 जा 28 दैट इज 7। यहाँ पे एंट्री आपकी डैश आई। नाउ नेक्स्ट, 2 यूनिट मूविंग टोटल। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको ये दोनों अभी 1 2 2 ईयर का टोटल करना है और सेंटर में लिखना है। तो ये सेंटर आपकी ये वाला ईयर हो गया, देखो 1978 वाली लाइन आ जाएगी। आप देख सकते हैं। इज दिस क्लियर? तो आपको अभी क्या करना है? आपको 2 ईयर मूविंग टोटल में आपको ये 2 ईयर्स लेने हैं और इनके सेंटर में लिखना है, दैट इज दिस वन। तो आ जाएगा 2 प्लस 2.5 विच इज 4.5। होप दैट आपको समझ में आया होगा। इज दिस क्लियर एवरीवन? चलो अभी क्या करना है आपको माय डियर स्टूडेंट्स? सेम वर्क, ऊपर से 1 ईयर को हटा दीजिए। चलो अब आपको क्या करना है माय डियर स्टूडेंट्स? 2.5 और 3 इनका टोटल दैट इज 5.5। चलो नेक्स्ट, यहां से हटाइए, नेक्स्ट ईयर लीजिए। 3 और 3.5 दैट इज 6.5।
तो आपकी नेक्स्ट एंट्री क्या आ जाएगी माय डियर स्टूडेंट्स? आपकी नेक्स्ट एंट्री आ जाएगी 6.5। नाउ 3.5 प्लस 4.25, 3.5 प्लस 4.25 दैट इज 7.75। तो आपकी एंट्री आ जाएगी माय डियर स्टूडेंट्स 7.75। नेक्स्ट एंट्री ये आपका 3.5 जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, 4.25 5.5 दैट इज 9.75। ना आपका 4.25 चला जाएगा, 5.5 प्लस 7 दैट इज 12.5, 12.5। और लास्ट में आपकी ये जाने के बाद कोई भी एक ही एंट्री बचेगी, बट हमें एटलीस्ट टू चाहिए, तो यहाँ पे प्रोसेस क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स? अब प्रोसेस शुड बी स्टॉप, और पहले दो जगह पे आपका आ जाएगा डैश। नाउ लास्ट, 4 ईयरली सेंटर्ड मूविंग एवरेज, इसी को ट्रेंड वैल्यू बोलते हैं। नाउ आपको क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा केयरफुल रहना है, ये दोनों तो डैश आएगा। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, ये जो 4.5 वैल्यू आई, ये 4.5 को आपको डिवाइड करना है, डिवाइड बाय 2 करना है। क्यों? क्योंकि ये 2 यूनिट है, तो यहाँ भले ही 4 ईयरली लिखा है, बट आपको डिवाइड, यहाँ से यहाँ जाने के लिए डिवाइड बाय 2 करना है। क्या करना है? डिवाइड बाय 2। ये सिली मिस्टेक्स बच्चे करते हैं, बच्चे स्टूडेंट्स डिवाइड बाय 4 करते हैं। सो आपको थोड़ा केयरफुल रहना है। तो 4.5 डिवाइड बाय 2, तो कैसे डिवाइड करने का, देखो 4.5 डिवाइड बाय 2, तो 4 का आधा कितना होगा 2, और ये 50 है, 50 का आधा 25, तो 2.25 आ जाएगा। ऐसे ओरली आप डिवाइड कर सकते हैं, तो आएगा 2.25। इज दिस क्लियर? लेट अस कंटिन्यू। 5 पॉइंट, अभी इसको डिवाइड करना है, 5.5 डिवाइड बाय 2, 5.5 डिवाइड बाय 2 दैट इज 2.75। 6.5 डिवाइड बाय 2 दैट इज 3.25। 7.75 divided by 2, which is 3.875, 875. 9.75 divided by 2, that is 4.875. माय डियर स्टूडेंट्स, आपको 3 डिजिट तक यहाँ पे जाना है, क्योंकि ये थर्ड डिजिट पे जाके रिमाइंडर 0 होता है। इसके लिए आपको 3 डिजिट तक जाना कंपलसरी है। 12.5 डिवाइड बाय 2, सॉरी, यहाँ पे हमने 7.75 डिवाइड बाय 2 किया, यहाँ पे हमने 9.75 डिवाइड बाय 2 किया। नाउ 12.5 डिवाइड बाय 2 विच इज 6.25। तो आपको इस कॉलम में क्या करना है, इस कॉलम में आपको डिवाइड बाय 2 करना है, याद रखिएगा। और यहाँ पे आपको क्या करना था, यहाँ पे आपको डिवाइड बाय 4 करना था। यहाँ पे आपको क्या करना था, 2 ईयर्स का टोटल, 2 ईयर्स का एवरेज, और यहाँ पे 4 ईयर्स का है, इसमें 4 ईयर का एवरेज, यहाँ पे 2 ईयर का एवरेज। होप दैट आपको ये सब अच्छे से समझ में आया होगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सॉल्व करें और इस कैलकुलेशन को वेरीफाई करें। दिस इज 4 ईयरली मूविंग एवरेज। तो मैंने आपको 3 ईयरली मूविंग एवरेज, 5 ईयरली मूविंग एवरेज एंड 4 ईयरली मूविंग एवरेज करा दिया। लेट अस प्रोसीड टू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, लिस्ट स्क्वायर मेथड। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, लेट अस प्रोसीड लिस्ट स्क्वायर मेथड। तो लिस्ट स्क्वायर मेथड में स्टेप 1 ये है कि आपको ईयर काउंट करना है, और आपको पता करना है कि हाउ मेनी ईयर्स। यहाँ पे जो ईयर होंगे वो इवन भी हो सकते हैं, और भी। काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ईयर एन इज 11, मतलब टोटल 11 ईयर है, और ये 11 क्या है, ऑड है। तो आपको लिस्ट स्क्वायर मेथड में दो टाइप के सम आ सकते हैं, ऑड के आ सकते हैं, नहीं तो इवन के आ सकते हैं। हम दोनों सम करेंगे। लेट अस सी, ये ऑड का सम है, तो हाउ टू हैंडल इट। सो माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ईयर काउंट करना है, और मेक श्योर दैट कि वो इवन है कि ऑड है, उसका आप पता कर लो। सो इन दिस सम इट इज ऑड, दैट इज n इक्वल टू 11। अभी n 11 है, तो हाउ टू सिंप्लीफाई क्या करेंगे हम लोग। सो ध्यान दीजिएगा कैसे सॉल्व करते हैं, हम आपको पूरा इन डिटेल इसको समझाएंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ इन द गिवन प्रॉब्लम n इक्वल टू 11, यहाँ से आपका सोल्यूशन चालू होता है। आपको लिखना है कि इस प्रॉब्लम में n कितना है, n हो गया आपका 11। और जब 11 होगा तो आपको मिडल वैल्यू मिलेगा। देखो कैसे करोगे, 1 ईयर यहाँ से गया, इधर से गया, दो इधर से गए, दो इधर से गए, दो इधर से गए, दो इधर से गए, 1981 आपका मिडल ईयर हो गया।
माय डियर स्टूडेंट्स 1981 क्या हो गया आपका मिडल ईयर। तो आपको क्या करना है, आपको मिडल ईयर फाइंड करना है। तो मिडल टी वैल्यू इज 1981। एच, व्हाट इज एच? एच है इनके बीच का गैप 1976 1977 दैट इज 1 ईयर, 77 78 1 ईयर, 78 79 1 ईयर। यहाँ पे आपका एच हो गया 1। तो आपको स्टेप वन में क्या करना है माय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्टेप वन है, आपको एन फाइंड आउट करना है, आपको मिडल ईयर फाइंड आउट करना है, आपको एच फाइंड आउट करना है, और आपको यू फाइंड आउट करना है। नाउ यू के दो फॉर्मूला है, इफ एन इज ऑड, इफ एन इज इवन। इफ एन इज ऑड, द फॉर्मूला फॉर यू, ये आपको लर्न करना है माय डियर स्टूडेंट्स, इसे लर्न करके रखिए। इफ n is odd, u is equal to u is equal to t minus middle t value upon h. U is equal to t minus middle t value upon h. Or my dear students, if n is even, then formula says that t minus mean of two middle value divided by h by 2. यहाँ पे my dear students h by 2 आएगा. Okay. So remember this formula. तो व्हाट इज टी? हमारा क्वेश्चन किसका है? हमारा क्वेश्चन ऑड का है, राइट? तो टी माइनस मिडल वैल्यू अपॉन एच, व्हाट इज द मिडल वैल्यू? 1981। तो टी माइनस 1981 अपॉन 1। तो अपॉन 1 का मतलब ही नहीं होता, तो यू क्या आ गया? देयरफॉर हमें यू आ गया टी माइनस 1981। सो स्टेप वन। तो माय डियर स्टूडेंट्स आपको क्या याद रखना है? अभी इसको मेमोराइज कैसे करोगे? तो आपको स्टेप वन में क्या करना है माय डियर स्टूडेंट्स? स्टेप वन में आपको एन फाइंड आउट करना है, आपको एच फाइंड आउट करना है, आपको यू फाइंड आउट करना है। एच, एन, एच, यू। एन टोटल नंबर ऑफ ईयर्स, एच टू कॉन्जिक्यूटिव ईयर के बीच का लेंथ, दैट इज हाइट, एच का मतलब हाइट, और यू होगा आपका टी माइनस मिडल वैल्यू अपॉन एच इफ एन इज ऑड। स्टेप टू। स्टेप टू में माय डियर स्टूडेंट्स आपको टेबल प्रिपेयर करना है। स्टेप टू इज टेबल। नाउ ये ईयर हो गया, ये प्रोडक्शन। आपको थ्री कॉलम ऐड करना है, यू, यू स्क्वायर, यू इंटू वाई टी। ये प्रोडक्शन को हम वाई एट टी बोलते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, ईयर को हम टी बोलेंगे। ना हाउ टू कैलकुलेट, व्हाट इज टी? टी इज 1976। तो आपको यहाँ लिखना है 1976 माइनस ये 1981 फिक्स हो गया, तो 1976 माइनस 1981 कितना आएगा माय डियर स्टूडेंट्स? दैट इज -5। तो आपकी पहली एंट्री आ जाएगी यहाँ पे -5। होप दैट आपको समझ में आया होगा। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स इसी तरह आपको सारी एंट्री फाइंड करनी है, लाइक 1977 1977 माइनस 1981। तो 1977 माइनस 1981 दैट इज -4। अब आपको इस तरह से पूरा लिख के दिखाने की जरूरत नहीं है, मैंने दो एंट्री दिखाई, अब आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। 1978 माइनस 1981 दैट इज -3। 1979 माइनस 1981 दैट इज -2। तो ये आपको इसी तरह रिवर्स में आएगा, -1 आएगा, फिर 1981 माइनस 1981 हो जाएगा, दैट इज 0। आफ्टर दैट यू विल गेट 1 2 3 4 एंड 5। रिमेंबर इट दिस, ये यहाँ पे टोटल है माय डियर स्टूडेंट्स, ये टोटल को आप बोलोगे समेशन यू, क्योंकि यू का टोटल आएगा ना, एंड समेशन यू इज ऑलवेज 0, ऑलवेज। ये आपको हमेशा 0 ही आएगा, ऑलवेज। इज दिस क्लियर? नाउ आफ्टर दैट माय डियर स्टूडेंट्स लेट अस प्रोसीड। आपको प्रोडक्शन का भी टोटल लेना है, दैट इज 0 प्लस 4 प्लस 4 4 प्लस 4 8 8 प्लस 2 10 10 प्लस 6 16 16 प्लस 8 24 24 plus 5 29 29 plus 9 38 38 plus 4 42 plus 10 52 plus 10 62। तो आपको इस कॉलम का टोटल आ गया माय डियर स्टूडेंट 62, जिसे हम बोलेंगे समेशन वाई टी। समेशन वाई एट टी इज इक्वल टू 62। नाउ व्हाट इज यू स्क्वायर? तो आपको इसका स्क्वायर करना है, -5 का स्क्वायर 25, -4 का स्क्वायर 16, -3 का स्क्वायर 9, -2 का 4, 1 0 1 4 9 16 25। और आप इसका टोटल कर देंगे माय डियर स्टूडेंट्स, तो यू विल गेट
summation u square, which is equal to 110. So you will get total is 110. Now, last column, my dear students, u multiply by y. ये दोनों कॉलम का मल्टीप्लाई, तो 0 multiply by -5. 0 multiply by -5 is 0. Now, 4 multiply by -4, that is -16. 4 multiply by -3, that is -12. So 0, -16, -12. Similarly, 2 multiply by -2, that is -4. सिमिलरली आप इसी तरह माय डियर स्टूडेंट्स वाई टी और यू स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर लें, सॉरी वाई एट टी एंड यू का मल्टीप्लाई कर लो. तो आई विल राइट द एंट्री 6 into -1, that is -6, 8 into 0, that is 0, then 5 into 1 5, 9 2 jar 18, 4 3 jar 12, 10 4 jar 40, 10 5 jar 50. Now, how to find this total? ये टोटल को कैसे फाइंड आउट करोगे? सो आई विल गिव यू ट्री. सो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, ये जितनी भी निगेटिव वैल्यू है, दैट इज -16 से लेके -6, आप ये वैल्यू को ऐड करो और ये वैल्यू को ऐड करो, ये अलग अलग करो. तो 16 प्लस 12, दैट इज 28, 28 प्लस 4 32, 32 प्लस 6 38. तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी -38. और ये पॉजिटिव नंबर ऐड करो, 18 प्लस 12, ये 18 और 12 कितना हो जाएगा, दैट इज 30, 30 प्लस 5 35, 35 तो 35 प्लस 40 75, 75 प्लस 50, दैट इज 125. तो आप इनको ऐड कर रहे हो, सो यू विल गेट 125. सो माय डियर स्टूडेंट्स, इसके टोटल में आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे टोटल आ जाएगा 125 माइनस 38. तो आप जब कैलकुलेट करोगे यू विल गेट 87. सो ये 87 क्या हो गया माय डियर स्टूडेंट्स, दिस 87 इज समेशन u इनटू y एट t. ये हो गया आपका कंप्लीट टेबल. सो माय डियर स्टूडेंट्स, होप दैट आपको ये टेबल समझ में आया होगा. आफ्टर दिस, अब आपको नेक्स्ट स्टेप पे चलना है, दैट इज स्टेप नंबर 3. लेट अस प्रोसीड टू स्टेप नंबर 3. चलते हैं अब स्टेप 3 पे. हमें क्या करना है हमारे डियर स्टूडेंट्स, सी चलो स्टेप 3. स्टेप 3. नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, वी हैव टू फाइंड द नॉर्मल इक्वेशंस. दैट इज आपको ये फाइंड आउट करना है, दिस एंड दिस. सो स्टेप 3, द नॉर्मल equations are, now what is the first equation, summation y at t is na plus b summation u. अगर आप डैश नहीं लगाओगे तो भी चलेगा, देयर इज नो नीड टू डैश, डैश नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा. नाउ व्हाट इज समेशन वाई टी माय डियर स्टूडेंट्स, समेशन वाई टी हमने कैलकुलेट किया था, दैट इज समेशन वाई टी इज, ध्यान से देखिए, समेशन वाई टू इज 62. तो आप यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे, 62 इज इक्वल टू व्हाट इज एन, एन तो 11 था, ए प्लस व्हाट इज बी, बी हमें पता नहीं, तो बी एज इट इज आएगा. समेशन यू, व्हाट इज समेशन यू, आप देख सकते हैं समेशन यू क्या है, 0. सो b into 0. So you will get 62 is equal to 11a plus 0. So what is a? A की वैल्यू आएगी 62 by 11. So therefore a की वैल्यू आ गई 62 divided by 11, that is 5.636. थर्ड डिजिट तक आप जाएंगे और बाद में आप इसे राउंड अप कर देंगे तो आपकी a की वैल्यू हो जाएगी 5.64. ये हो गया आपका स्टेप 3 फर्स्ट पार्ट. फिर स्टेप 3 में आपका सेकंड पार्ट आता है माय डियर स्टूडेंट्स. और सेकंड पार्ट, दैट इज दिस सेकंड इक्वेशन. ये आपको सेकंड इक्वेशन भी कैलकुलेट करना है. व्हाट इज द सेकंड इक्वेशन, समेशन u into y at t is a summation u plus b summation u square. So let's calculate what is summation u into y at t, that is 87. So 87 is equal to, 87 is equal to a, ऐसे ही रखो, what is summation u,
समेशन यू, डू यू रिमेम्बर इट? समेशन यू इज ऑलवेज जीरो, तो ये तो आपका जीरो ही है। ओके, जीरो प्लस बी, व्हाट इज समेशन यू स्क्वायर? समेशन यू स्क्वायर 110 था, you will get 87 is equal to 0 plus 110b. 87 is 110b. What is b? b is 87 divided by 110. Therefore, my dear students, b is equal to 0.790 and 9. Is this clear? तो आपको b की वैल्यू आ जाएगी 0.79। हमें 2 डिजिट तक ही जाना है। अगर आप 4 डिजिट तक जाएंगे देन इट इज वेल एंड गुड, अदरवाइज आप 2 डिजिट पे स्टॉप कर सकते हो। दिस इज स्टेप नंबर 3। नाउ फाइनल स्टेप, स्टेप नंबर 4 पे चलेंगे माय डियर स्टूडेंट्स। ये आपका स्टेप्स है जो हम यहाँ पे आपको बार बार स्क्रॉल डाउन करके दे रहे हैं। स्टेप नंबर 4, फाइनल स्टेप्स। तो इट इज 4 स्टेप्स का सम एंड 4 मार्क्स प्रॉब्लम। तो व्हाट इज स्टेप 4? स्टेप 4 में आपको लिखना है द इक्वेशन of the trend line becomes, now what is the formula? Y at t is a plus b u. So y at t is, what is a की वैल्यू? a की वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी माय डियर स्टूडेंट, दैट इज 5.64। आप डेसिमल में लाइए, अगर डेसिमल में नहीं लाए तो आप फ्रैक्शन में भी रख सकते हो, दैट इज 62/11। तो पहले मैं क्या करता हूँ, पहले मैं फ्रैक्शन में लिखता हूँ 62/11 प्लस, व्हाट इज बी की वैल्यू? बी की वैल्यू भी हमें 87/110 टाइम्स यू। और इसी को अगर आप डेसिमल में लिखना चाहते हैं तो 62/11 हमें कितना मिला था? 5.64। सो 5.64 प्लस 0.79 यू। माय डियर स्टूडेंट्स, रिमेंबर इट, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आंसर। ये सबसे इंपॉर्टेंट आंसर हुआ। ये हमारा हुआ y80, जिसे हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेंड लाइन। नाउ ये स्टेप 4 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। आपको क्वेश्चन में ये पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है ऑब्टेन द ट्रेंड वैल्यू। आपको ट्रेंड वैल्यू फाइंड करना है 1990 के लिए। आपको 1986 पे स्टॉप किया है, आपको पूछता है 1990 में प्रोडक्शन कितना होगा, दैट इज द ट्रेंड वैल्यू। हाउ, कितना प्रोडक्शन होगा 1990 में, कैसे फाइंड आउट करेंगे? सो माय डियर स्टूडेंट्स, फॉर दिस यू विल कंटिन्यू दिस सम। इस सम को हमें आगे कंटिन्यू करना होगा। कैसे करेंगे ध्यान दो। तो आपका आएगा स्टेप 5। स्टेप 5, स्टेप 5। नाउ व्हाट इज स्टेप 5? आपको y क्या मिला? y एट t, मतलब हमें क्या फाइंड करना है? देखो पहले यहाँ पे लिखो गिवन। व्हाट इज गिवन? हमें टाइम दिया है। क्या दिया गया है माय डियर स्टूडेंट्स? टाइम। कितना टाइम दिया है? कौन सी ईयर का पूछा है? 1990 में पूछा है कि y एट t कितना होगा। 1990 का ही पूछा था ना क्वेश्चन, देखो फॉर द ईयर 1990। ओके, ईयर आपको दिया है 1990 में प्रोडक्शन कितना होगा। चलो, तो हमें y एट t क्या मिला? हमें y एट t जो हमारा इक्वेशन है दैट इज 5.64 प्लस 0.79 टाइम्स u मिला। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, जब भी आपको इस तरह से प्रोडक्शन पूछेगा तो आपको u की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। तो व्हाट इज u? 5.64 प्लस 0.79 एंड व्हाट इज u? तो u हमने एकदम स्टार्टिंग में कैलकुलेट किया था स्टेप 1 में, दैट इज u इज t माइनस 1981। ये आपको पुट करना है, t माइनस 1981। चलो, दे ये हो गया y एट t। देयरफॉर, सो देयरफॉर y, वो कौन सी ईयर का? 1990, तो t की जगह पे 1990 लिखो। तो y एट 1990 इज 5.64 प्लस 0.79, t के प्लेस पे आपका आएगा 1990
minus 1981. Is this clear? So you will get 5.64 plus 0.79 into 9. So you will get 5.64. Come on, सब लोग मुझे फटक से 0.79 मल्टीप्लाई बाय 9 करके कमेंट बॉक्स में करो। कम ऑन, ट्राई करो। आप ट्राई करेंगे तो ही माय डियर स्टूडेंट्स आपको समझ में आएगा। So you will get 0.79 multiplied by 9. That is 7.11. Very good. 7.11. So 5.64 plus 7.11. 12.75. You will get 12.75 is the production in 1990. So since it is word problem, तो आपको final answer लिखना है. Therefore, या hence trend value for the year 1990 is 12.75. Full stop. Is it clear? और यही क्वेश्चन अगर आपका ये पूछता कि यहाँ तो फाइंड द ट्रेंड वैल्यू पूछा है, अगर यही क्वेश्चन में ऐसे पूछता फाइंड द प्रोडक्शन फॉर 1990, तो आप आंसर प्रोडक्शन के टर्म्स में लिखते। और अगर प्रोडक्शन के टर्म्स में लिखना होता तो आप इन मिलियंस ऑफ टन्स लिखना नहीं भूलेंगे, इन मिलियंस ऑफ टन्स। तो अगर सपोज सपोज ये क्वेश्चन में पूछा होता फाइंड द प्रोडक्शन, तो और अगर एग्जाम में प्रोडक्शन पूछा तो आप इस तरह लिखोगे, प्रोडक्शन फॉर द ईयर 1990 इज 12.75। कि ब्रैकेट में आपको लिखना ये कंपलसरी है। क्या लिखना कंपलसरी है क्वेश्चन में, ध्यान से पढ़ो क्या लिखा था। अगर वो नहीं लिखोगे तो मार्क्स कट जाएगा। इन मिलियंस ऑफ टन्स, तो ब्रैकेट में इट इज नेसेसरी टू राइट इन मिलियंस ऑफ टन्स। ये अगर प्रोडक्शन एग्जाम में पूछा तो आपका ये इस तरह से फाइनल आंसर लिखना होगा। होप दैट आपको ये क्वेश्चन लिस्ट स्क्वायर मेथड का बहुत अच्छे से समझा होगा। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, लास्ट सम ऑफ द चैप्टर, दैट इज अगेन लिस्ट स्क्वायर मेथड। बट अभी हमने जो क्वेश्चन नंबर 5 में किया था उसमें ऑड था, और यहाँ पे हम जो करेंगे वो माय डियर स्टूडेंट्स इवन होगा। सो लेट अस सी हाउ टू सिंप्लीफाई। काउंट करो, हाउ मेनी इयर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो देर आर 10 इयर्स। तो थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं क्योंकि अब तो आपको पता ही चल गया हमें करना क्या है। तो यहाँ पे n हो गया 10, हियर n इक्वल टू 10। इज दिस क्लियर? तो व्हाट इज u का फॉर्मूला, दैट इज इफ n इज इवन द फॉर्मूला इज p माइनस मीन ऑफ टू वैल्यूज। तो अभी आपको मिडल वैल्यू निकालो। कैसे निकालोगे, देखो 76 गया, यहाँ पे 85 गया, आगे से 2 गया, ये पीछे से 2 गया, फिर इधर से एक कट, इधर से कट। तो आपके दो वैल्यू बच रहे हैं माय डियर स्टूडेंट्स, एक 1980 और एक 1981। ये बीच में दो वैल्यू आएंगे। तो आपको क्या करना है, 1980 प्लस 1981 डिवाइड बाय 2 करना है। यू विल गेट 1980.5। समझे? ये आपका हो जाएगा मीन ऑफ टू मिडल वैल्यू, मीन ऑफ टू मिडल वैल्यू 1980.5। सो माय डियर स्टूडेंट्स, होप दैट आपको ये समझा होगा सर ने कैसे कैलकुलेट किया। सो अगर कहीं भी दिक्कत आ रही है तो आप पॉज करें और वीडियो थोड़ा पीछे जाके बैक करके वापस सुनो। तो आपका यू क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा टी माइनस 1980.5। ओके, तो सॉरी, इसको हम कंटिन्यू करेंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, यू विल गेट u इज इक्वल टू टी माइनस मीन ऑफ टू मिडल वैल्यूज डिवाइड बाय h बाय 2। यहाँ पे फॉर्मूले में जब भी इवन होगा तो h बाय 2। तो यहाँ h क्या हुआ, इनके बीच का गैप, दैट इज 1 ईयर का गैप। ओके, सो आपका आएगा t माइनस 1980.5 डिवाइड बाय 1/2। ये 2 ऊपर चला जाएगा तो यू विल गेट u इज 2 टाइम्स t माइनस 1980.5। दिस इज u। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे 2 टाइम्स आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, 2 टाइम्स। दिस इज u इज इक्वल टू 2 टाइम्स t माइनस। नाउ लेट अस कैलकुलेट। अब ये कैलकुलेशन कैसे करेंगे तो केयरफुली करना है। चलो पहली एंट्री करते हैं हम लोग। 2 times what is t, that is 1976
माइनस 1980.5, ये वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है माय डियर स्टूडेंट्स। तो लेट अस कैलकुलेट दिस वैल्यू और कमेंट बॉक्स में डालिए। तो 1976 में से 1980.5 माइनस करना है, कितना आ जाएगा? चलो फटाफट करो और कमेंट बॉक्स में डालो। 4.5, यस वेरी गुड, 4.5। तो ये आ जाएगा आपका 2 टाइम्स 4.5। तो 2 इंटू 4.5 9 आएगा। तो ये -9 आएगा क्योंकि ये -4.5 आएगा ना, तो -9 आएगा। कितना आएगा? -9। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आपकी फर्स्ट एंट्री आ जाएगी -9। तो आप एग्जाम में यहाँ पे डायरेक्ट -9 लिखो, नो इशू, -9। चलो अभी सेकंड एंट्री यहाँ पे कैसे करोगे? फॉर्मूला क्या है? 2 टाइम्स। तो 2 टाइम्स ब्रैकेट में 1977 माइनस 1980.5। तो इट इज 2 टाइम्स, माइनस करो, 3.5 आएगा, राइट, -3 पॉइंट। तो 2 इंटू -3.5 दैट इज -7। तो आपकी नेक्स्ट एंट्री क्या आ जाएगी? -7। होप दैट आपको समझ में आया होगा। तो आपकी पहली एंट्री आई -9, नेक्स्ट एंट्री आई -7 एंड सो ऑन। इसी तरह आप कैलकुलेट करिए माय डियर स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट एंट्री -5, फिर आपको -3, -1, then you will get 1, 3, 5, 7, 9। और यहाँ पे आपका टोटल, हमेशा मैंने बोला है, समेशन यू का 0 आएगा ऑलवेज। नाउ यू स्क्वायर, तो -9 का स्क्वायर 81, -7 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करना है, दैट इज 49, 25, -3 का 9, देन 1, 1, 9, 25, 49, 81। और इसका टोटल आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट, दैट इज समेशन यू स्क्वायर, that is 330। नाउ u इंटू वाई, तो आपको ये कॉलम और ये कॉलम का मल्टीप्लाई करना, तो 0 इंटू -9 दैट इज 0। इज दिस क्लियर? तो दिस कॉलम एंड दिस कॉलम दैट इज 0। 2 इंटू -7 दैट इज -14। सिमिलरली नेक्स्ट -15, आप कर लीजिएगा माय डियर स्टूडेंट्स और वेरीफाई करिएगा। -9, देन यू विल गेट -2, देन 4, 15, 30, 49 एंड 90। नाउ इतना होने के बाद माय डियर स्टूडेंट्स, आपको ये निगेटिव वैल्यूज का टोटल करना है, दैट इज यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये आपको एक साथ करना है। कितना आएगा? -14, -15 दैट इज -29, -9, -38, -2 दैट इज -40। चेक करो, 14 एंड 15, -29, -29 एंड 9, 38, 38 एंड 2, -40, सॉरी। तो इसका टोटल आ जाएगा -40। उसी तरह अब आप पॉजिटिव नंबर्स के टोटल करो। पॉजिटिव नंबर मतलब 4 से लेके 90 तक का, यू विल गेट माय डियर स्टूडेंट्स 188। सो आपको यहाँ पे क्या करना है? आपके यहाँ टोटल आएंगे 188 -40। आप एग्जाम में इसी तरह लिखो, जैसे हम लिख रहे हैं इसी तरह आप एग्जाम्स में लिखो, 148। और ये 148 आपका कहलाएगा समेशन u इंटू वाई एट पी। ये हो गया आपका स्टेप 2। तो होप दैट माय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्टेप 1 क्लियर हुआ। दिस इज स्टेप 1 और ये आपका टेबल था स्टेप 2। नाउ स्टेप 3 पे चलते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। नाउ स्टेप 3, दैट इज नॉर्मल इक्वेशंस। स्टेप 3, the normal equations are, now what is the first equation? Summation y at t is na plus b summation u. And what is the second equation? That is summation u into y at t is a summation u plus b summation u square. Okay, b summation u square. Let us calculate. What is summation yt? Summation yt अभी अभी हमने कैलकुलेट किया था हमारे डियर स्टूडेंट्स। ओके, y का टोटल बाकी है ना। ओके, दिस टोटल इज कॉल्ड एज समेशन yt, समेशन y एट t। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसका टोटल करेंगे, यू विल गेट 42। ओके, सो व्हाट इज समेशन yt? दैट इज 42
एन कितना था 10, ए हमें कैलकुलेट करना है, बी पता नहीं, समेशन यू ऑलवेज जीरो. So you will get 42 is equal to 10a plus 0. 42 is 10a. So what is a? 42 upon 10. चलो ये साइड आ जाओ. What is summation? My dear students, summation yt. चलो summation u into yt ना कैलकुलेट करो. Summation of u into yt कितना आया था? That is 148 आया था ना. तो 148 देखो ना ऊपर टेबल में. ये देखो ये टेबल में आया था ना, हमने कैलकुलेट किया था 148. So 148 is equal to A समेशन U. समेशन U तो जीरो ही रहता है. प्लस व्हाट इज B कैलकुलेट करना है समेशन U स्क्वायर. समेशन U स्क्वायर इज 330. So we get 148 is equal to 0 plus 330B. So 148 equal to 330B. What is B? B is 148 divided by 330. What is B? 0.44 थर्ड डिजिट 8 आएगा, तो आप इसे कर दो 0.45. तो ये आ गया आपकी बी की वैल्यू. 42 डिवाइड बाय 10 इज 4.2. तो आपके ए की वैल्यू हो गई 4.2. स्टेप 3 समझ गया. स्टेप 3 का ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट. स्टेप 3 में ये हो गया आपका सेकंड पार्ट. नाउ स्टेप 4 नो दैट इज ट्रेंड लाइन. स्टेप 4. तो इक्वेशन ऑफ द equation of trend line. Equation of trend line as, what is the equation? That is y at t is equal to a plus p u. So y at t, what is a? A अभी अभी हमने कैलकुलेट किया हमारी डियर स्टूडेंट, that is 4.2. So 4.2 plus b, that is 0.45. डेसिमल में लाना कंपलसरी है. And u, this is the our final answer. This is called as trend line, equation of trend line. अब आपको क्वेश्चन में चेक करना है कि आपको किसी पर्टिकुलर ईयर के लिए पूछा है कि नहीं. अगर नहीं पूछा होगा तो ये फाइनल आंसर हो गया. चलो क्वेश्चन में चलते हैं. Find the trend line of the above data. Least square. Obtain the trend value for the index of industrial production for the year 1987. Yes, पूछा है. कौन सी ईयर के लिए पूछा है? 1987. तो स्टेप 5 गिवन. कौन सी ईयर का पूछा है हमारे डियर स्टूडेंट्स? 1987. तो टाइम हो गया 1987 और आपको पूछा है y at t इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. नाउ व्हाट इज y at t? दैट इज 4.2 प्लस 0.45 u. तो आपको u सब्स्टिट्यूट करना होगा. 4.2 प्लस 0.45. नाउ व्हाट इज u? u हमारा था 2 टाइम्स ब्रैकेट t माइनस 1980.5. होप दैट आपको याद होगा. ये u कहां से आया? आप देखो स्टेप 1 में हमने कैलकुलेट किया था. देख सकते हैं आप u. यस एवरीवन सी हियर. ये हमारा u था. यस ये देखो कैलकुलेट किया था ना हमने u. यही सब्स्टिट्यूट होगा. अब t के प्लेस में 1987 सब्स्टिट्यूट करना है केयरफुली. सो y at 1987 is equal to 4.2 plus 0.45 bracket 2 times 1987 minus 1980.5. So we get 4.2 plus 0.45 ब्रैकेट. चलो मल्टीप्लाई कर दो आप, क्या आ जाएगा? तो वी गेट 2 टाइम 1987 में से 1980.5, दैट इज 6.5. सो माय डियर स्टूडेंट्स वी गेट 4.2 0.45 6.5 into 2, that is 13. So we get 4.2 plus now 0.45 into 13. Come on, फटक से कमेंट बॉक्स में करो कितना आएगा हमारे डियर स्टूडेंट्स.
0.45 multiplied by 13, that is 5.85. Very good, excellent. 5.85, which is equal to 5.85 plus 4.2, that is 10.05. So we get 10.05. This is y at 1987. ये आपको पूछा था कि 1987 में आपका इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कितना होगा, सो आपका आंसर है 10.05. सो सिंस इट इज वर्ड प्रॉब्लम, आपका फाइनल आंसर आएगा हेंस द ट्रेंड वैल्यू फॉर द इंडेक्स, द ट्रेंड वैल्यू फॉर द इंडेक्स ऑफ industrial production, industrial production for the year, for the year 1987 is 10.05. Full stop. So my dear students, यहाँ पे हमारा लिस्ट स्क्वायर मेथड फॉर इवन के लिए भी हमने कंप्लीट किया. होप दैट माय डियर स्टूडेंट्स आपको ऑल 6 सम्स समझ में आए होंगे. सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में मैंने आपको टाइम सीरीज के 3 ईयरली मूविंग एवरेज, 4 ईयरली मूविंग एवरेज, 5 ईयरली मूविंग एवरेज, लिस्ट स्क्वायर मेथड व्हेन एन इज ऑड, व्हेन एन इज इवन, ये सारी चीजें विथ ऑल दिस थियरी कॉन्सेप्ट्स, ये सारे थियरी कॉन्सेप्ट्स के साथ हमने टाइम सीरीज कंप्लीट किया. माय डियर स्टूडेंट्स, होप दैट आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर बोर्ड एग्जाम फॉर 7 मार्क्स. आप माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको पसंद आए तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें माय डियर स्टूडेंट्स, और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को स्प्रेड करें जिससे 12th स्टैंडर्ड के सारे बच्चों को इनका फायदा मिले. इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें. बाय एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग.